So hello friend, and today's we discuss with treatment of hypertension in CKD patient. This topic is very important because many doctors confuse that which drug is prescribed to the CKD patient for controlling BP, and so the topic is very important for us and very interesting for us. So just we start for that. Treatment of hypertension in CKD patients. So, as I already described the target BP in CKD patients, and so the target BP in CKD patients, especially targeted goal is that when BP when systolic BP, we just say that the BP target is less than 130 by 80 in low proteinuria. Actually, if less than 1 gram per day अगर protein अगर urine में, just say that. And if BP target is that in CKD patient is less than 125 by 75, and something is that in high proteinuria. A patient have high proteinuria, that's more than 1 gram, लगभग मतलब सोच सकते हैं more than 1 gram per day अगर यूरिन में प्रोटीन आ रही है, तो आप जो है उसको जो बीपी का जो टारगेट है उसको लोअर रखना है 125 by 75 से. According to theory, this target is less than 120 mmHg. Systolic blood pressure target is less than 120 mmHg. So how we met this target? ठीक है, by the following antihypertensive drugs. So we just to see which does being prescribed. So here we begin with ACEI or ARB. Yeah, this is very important point. In CKD patient, we control the hypertension with the following drugs. We start with the drugs ACI or ARBs. ACI have more side effects like cough and angioedema, and ARBs have less side effects. So we just see and also the chances of hyperkalemia is also high in cases of this using these drugs. So especially we just tell that ACI and ARB we start, and we start ACI or ARBs and do ambulatory and we regularly check BP, especially home based BP monitoring. ठीक है, so BP monitoring या ambulatory BP monitoring. ठीक है, अगर home based BP monitoring नहीं है तो आप ambulatory BP monitoring कर सकते हैं, बट हमें CKD के पेशेंट में BP monitoring हमें करना पड़ेगा, चाहे वो घर पे हो चाहे बाहर, because in CKD patient masked hypertension and white coat hypertension are more common. So we just check the BP in home, and also if not possible, and we just check the BP routinely on the clinic. So we start with the ACI or ARB, and if ACI and ARB is not effective, or any patient who are resistant to ACI ARB, we just go for the direct renin inhibitor like L-scan. But it's a rare chance that a patient have resistance for ACI or ARB both. So if resistance developed or resistance found, then we start with the direct renin inhibitor L-scan. Now, if the BP target is not met by starting with this ACI or ARBs, so we just go for we just increase the dose of ACEI or ARB. ठीक है, so अगर टारगेट हमें नहीं मिला, if 2 to 4 weeks, हम every 2 to 4 weeks पे टारगेट चेक करेंगे. अगर 2 to 4 weeks पे हमें ड्रग स्टार्ट करना है ACI ARB, और अगर उसके 2 से 4 वीक पे अगर हमें जो टारगेट मतलब जो है हमें रखना है ASBP को लेस देन 120, ये आप मान लीजिए बस. तो अगर मैं 120 से नीचे अगर टारगेट रखना है, और ये टारगेट अगर हमें नहीं मिला पेशेंट का 2 से 4 वीक पे, तो हम क्या करेंगे, तो हम इसकी डोज को इंक्रीज कर देंगे. इंक्रीज द डोज ऑफ ACI और ARBs टू मैक्सिमम, जितनी मैक्सिमम डोजेज है, मैक्सिमम लिमिट जो है टॉलरेबल लिमिट, वहां तक इसकी डोज को बढ़ा के देखेंगे. Because ACI and ARB is also effective in CKD patient, why we start with this ACI ARB? Because there is so much effect
effect of the ACI and ARB in the CKD patient, and these drugs are very effective because the chance of proteinuria is less in when we start this ACI and ARB. So generally we start the ACI and ARB in the CKD patient who have high proteinuria, and also the ACI and ARB also good for the cardiovascular, in the region of cardiovascular. So any patient have a high cardiovascular risk, so they just down the cardiovascular risk, and they just because they also used in the, or they also treat left ventricular remodeling also. So this is very important that ACI are very good effective drugs in CKD patient, and we just start for that, and we just check for urine protein also. If proteinuria is high, we just start the ACI and ARBs. So if the BP target, and if BP target is met at lower dose, then well and good. If not met, then we start the higher dose. ठीक है, इसी ACI ARB की डोज को हम इंक्रीज करेंगे। इन हाई डोज पे ACI ARB मोर इफेक्टिव होती हैं, यानी कि प्रोटीनुरिया के चांस कम होता है, दूसरा सीवी रिस्क भी कम होता है। नाउ इफ हमने अब डोज बढ़ा दिया, इंक्रीज द डोज, अब डोज बढ़ाने के बाद भी बीपी टारगेट इज नॉट मेट, बीपी नहीं, हमें टारगेट जो हमें चाहिए एसबीपी तो 120 से नीचे, वो टारगेट हमें नहीं मिला, तो हम क्या करेंगे फिर? तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम यूरिन में प्रोटीन चेक करेंगे, ठीक है। सो यूरिन, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यूरिन में प्रोटीन एक्चुअली यूपीसीआर और यूएसीआर, एक्चुअली पहले मैं बता चुका हूं कि यूपीसीआर करते हैं जब यूरिन में 24 आवर यूरिन प्रोटीन जो है वो मोर देन 500 मिलीग्राम पर डे होती है। अगर मोर देन 500 मिलीग्राम पर डे तो यूपीसीआर करते हैं, और अगर लेस देन 500 मिलीग्राम पर डे तो उसे यूएसीआर करते हैं। दोनों ही इफेक्टिव है, दोनों ही सही हैं। तो इसमें स्पेशली यूपीसीआर अगर जो है वो लेस देन, मतलब लेस देन 0.6 है, एंड यूएसीआर लेस देन 0.4 है, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू द थियरी वी जस्ट टेल दैट द लो प्रोटीनुरिया, ठीक है। सो लो प्रोटीनुरिया को हम चेक करें कि लो प्रोटीनुरिया के लिए यूपीसीआर लेस देन 0.6, यूएसीआर लेस देन 0.4, and if the UPCR and UCR, that's low proteinuria is found by the testing for this UPCR UCR. So we just start for the we just start for the drug, and the drug is name is DHP dihydropyridine CCB, ठीक है, like amlodipine. We just start amlodipine, ठीक है। A patient have low proteinuria, we just start amlodipine, and dose is 2.5 मिलीग्राम to up to 5 मिलीग्राम पर डे, ठीक है। तो हम लो डोज में, यानी कि amlodipine को 2.5 मिलीग्राम से 5 मिलीग्राम पर डे, amlodipine भी दे सकते हैं। ये है आपका जो है DHPCCB। स्टार्ट कब करेंगे? जब ACI ARB हमने देखा, ACI ARB का इफेक्ट नहीं आया लो डोज पे, ठीक है, 2 से 4 वीक पे देखा, 2-4 वीक पे इफेक्ट नहीं आया, हमने इसी की डोज को बढ़ा दिया। इसी डोज को बढ़ाने के बाद में भी नहीं आया तो हमने यूपीसीआर यूसीआर कराया, और उसमें देखा लो प्रोटीनुरिया। अगर लो प्रोटीनुरिया है तो हम डीएचपीसीसीबी स्टार्ट करेंगे, डीएचपीसीसीबी में एम्लोडिपिन स्टार्ट करेंगे 2.5 से 5 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से। अगर प्रोटीनुरिया हाई है, अगर यहीं पे ये यूपीसीआर और यूएसीआर अगर 0.6 से 0.4 से ज्यादा है, और यानी कि हाई प्रोटीनुरिया है, अगर हाई प्रोटीनुरिया है तो वहां पर हम क्या स्टार्ट करेंगे? नॉन डीएचपीसीसीबी, और इसमें है हमारा डिल्टियाजेम स्टार्ट करेंगे 180 मिलीग्राम पर डे। एक्सटेंडेड रिलीज स्टार्ट करेंगे, एक्सटेंडेड रिलीज हमने स्टार्ट किया डिल्टियाजेम 180 मिलीग्राम पर डे। एक्चुअली 90 मिलीग्राम सस्टेंड रिलीज की टैबलेट आती है, तो 90 मिलीग्राम सस्टेंड रिलीज जो है ऐसा बीडी कर देंगे स्टार्ट, ठीक है। तो अगर हाई प्रोटीनुरिया, तो हाई प्रोटीनुरिया है तो आपको नॉन डीएचपीसीसीबी स्टार्ट करना है, किसके साथ में? कॉम्बिनेशन ACI ARB, यानी कि ACI ARB का मैक्सिमम डोज पे बीपी रीच नहीं किया तो हमने क्या किया? यूरिन में प्रोटीन कराया। यूरिन प्रोटीन अगर बढ़ा हुआ है तो नॉन डीएचपी स्टार्ट करेंगे, यूरिन प्रोटीन कम है तो डीएचपी स्टार्ट करेंगे, लेकिन इसके साथ में ARB की मैक्सिमम डोज चलती रहेगी, ठीक है। अगर बीपी अगर टारगेट जो हमें था वो हमें इसके स्टार्ट करने के 2 से 4 वीक के बाद बीपी टारगेट मिल गया तो वेल एंड गुड, और बीपी टारगेट नहीं मिलता है तो फिर हम आगे फिर जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, ठीक है। अब हमने जो है ACI की मैक्सिमम डोज दे दी, उसके साथ में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी दे दिया, नई बीपी मेट किया, तो फिर हम आगे जाएंगे, और आगे हम जा करके अब हम जो स्टार्ट करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे डायूरेटिक थेरेपी स्टार्ट करेंगे। डायूरेटिक थेरेपी जो है, तो डायूरेटिक थेरेपी स्टार्ट
तो डायूरेटिक थेरेपी जो है उसमें क्या है, आप दो तरह से कर सकते हैं। एक तो आप स्टार्ट कर सकते हैं, एक्चुअली देखो कि एक तो क्लोरथैलिडोन और एक फ्यूरोजमाइड। फ्यूरोजमाइड जो है स्टार्ट कर सकते हैं, क्लोरथैलिडोन स्टार्ट करेंगे अगर सीरम क्रिएट जो है वो 2.5 से कम है, ठीक है, और अगर सीरम क्रिएट जो है वो 2.5 से ज्यादा है तो हम फ्यूरोजमाइड स्टार्ट करेंगे। 20 to 40 मिलीग्राम पर डे, यानी लो डोज ही रखनी है डायबिटिक्स की, 20 to 40 मिलीग्राम पर डे। और अगर टॉरेसिमाइड स्टार्ट करते हैं तो टॉरेसिमाइड में क्या स्टार्ट करेंगे, 10 to 20 मिलीग्राम पर डे, ठीक है, पर डे इतना स्टार्ट करना है। लेकिन कब करना है, जब सीरम क्रिएटिनिन 2. और कुछ कंडीशन है जहां डायबिटिक देना है, तो डायबिटिक किस कंडीशन में देना है, एक तो उसमें देना है जब हाई सॉल्ट इंटेक, ठीक है, अगर सॉल्ट इंटेक हाई है, हाई सॉल्ट इंटेक, ठीक है, हाई सॉल्ट इंटेक है, या फिर क्या है, या दूसरा ये है कि इडीमा, ठीक है, पेरिफेरल इडीमा प्रेजेंट, ठीक है, एंड सम एशियन अफ्रीकन जो है उसमें भी कंट्रीज में भी नेटिव अमेरिकन में भी देते हैं टाइप्स। तो स्पेशली हाई सॉल्ट इंटेक एंड इडीमा प्रेजेंट, अगर दो कंडीशंस हैं तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, और यहाँ पर हम सीरम क्रिएटिनिन करके देखो, सीरम क्रिएटिनिन अगर 2.5 से कम है तो सीधी स्टार्ट करेंगे 12.5 मिलीग्राम अल्टरनेट डे, ठीक है, अल्टरनेट डेट पे हम जो है सीटी क्लोरथैलिडोन देंगे। और अगर सीरम क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है तो फ्यूरोजमाइड से स्टार्ट करेंगे और टॉर्सिमाइड दे सकते हैं, इतना, ठीक है। और अगर डायबिटिक दूसरा क्या डायबिटिक, जैसे कि स्पाइरोनोलैक्टोन, ये पोटेशियम स्पेयरिंग डायबिटिक्स है, इसको कह सकते हैं आप एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट। एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट ये कब स्टार्ट करेंगे, एक्चुअली एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट स्टार्ट करते हैं व्हेन प्री डायबिटीज, यानी कि प्री डायबिटिक कंडीशन है पेशेंट को, सीकेडी तो है, प्री डायबिटिक है या फिर डायबिटिक कंडीशन है पेशेंट को, ठीक है, या फिर अगर पेशेंट जो है उसमें पोटेशियम लेवल जो है वो लो एंड ऑफ नॉर्मल, ठीक है, यानी नॉर्मल जो है उससे भी कम, यानी उससे भी लो एंड पे, लो एंड ऑफ नॉर्मल, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ पे प्री डायबिटिक पोटेशियम लेवल लो एंड ऑफ द नॉर्मल, तो वहां पर हम जो है एल्डेक्टोन या फिर स्पाइरोलैक्टोन स्टार्ट करते हैं 25 मिलीग्राम मतलब पर डे, इससे ऊपर हम जो है नहीं जाएंगे, ठीक है, पर डे 25 मिलीग्राम पर डे स्टार्ट करेंगे। अब जो बात आती है वो आती है आपका कि अगर इससे बीपी मिल जाता है तो वेल एंड गुड, और इससे भी बीपी नहीं मिल रहा है तो फिर आगे जाएंगे। तो फिर हम आगे क्या जाएंगे, तो बेसिकली जो है यहाँ पर हम क्या करेंगे कि अगर हमने क्या किया, हमने ACI या ARB इसकी मैक्सिमम डोज दे दी, उसके बाद इसमें हमने CCB मिला दिया, ठीक है, उसके बाद बीपी नहीं आया तो हमने डायरेटिक दे दिया, अब डायरेटिक भी दे दिया हमने, तो हमारे जो है ये फर्स्ट लाइन हो गया, ये सेकंड लाइन हो गया। अब डायरेटिक आर द थर्ड लाइन थेरेपी, तो डायरेटिक आर द थर्ड लाइन थेरेपी इन द CKD पेशेंट। फर्स्ट लाइन थेरेपी इज ACI और ARB, ठीक है, सेकंड लाइन इज CCB एंड थर्ड लाइन इज डायरेटिक। अब इससे भी फायदा नहीं हुआ डायरेटिक देने से भी, तो अब हम क्या करेंगे, अब उनको कंबाइन कर देंगे। एक्चुअली हम जो है एल्डेक्टोन प्लस जो फ्यूरोजमाइड यानी कि लेसिलैक्टोन कर देंगे। एक्चुअली क्या करेंगे, वो एल्डेक्टोन और फ्यूरोजमाइड को कंबाइन कर देंगे, दैट इज कहते हैं ना लेसिलैक्टोन। अब ये देंगे 20/, एक्चुअली दिस especially 20/50, ठीक है। सो we just start because we just say that the 20 because dose 20 to 40 इसकी मैक्सिमम 25 रखनी है, तो हमें इसका क्या करना है 25 और दिस लेसिलैक्टोन यानी कि कंबाइन में हम इसको स्टार्ट करेंगे। अगर इसके बाद में बीपी नहीं मिला तो हम क्या करेंगे, फिर उसके बाद हम आगे जाएंगे और आगे जाके ये चेक करेंगे, रीअसेस द कंडीशन, मतलब जो हमने हाई डोज ARB ACI दे दिया, डायरेटिक दे दिया एंड DCI मतलब जैसे CCB दे दिया, इसके बाद भी बीपी नहीं मिल रहा है, बीपी गोल जो है बीपी गोल नहीं आ रहा है, यानी कि SBP 120 से नीचे नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, रीअसेस करेंगे। रीअसेस किया हमने, तो रीअसेस में क्या करेंगे, या तो जो है आपका जो मतलब कहते हैं कि जो घर पे जो बीपी लिया जा रहा है वो घर पे जो बीपी या तो गलत लिया जा रहा है, यानी कि जो बीपी मॉनिटरिंग है, ठीक है, या तो बीपी मॉनिटरिंग जो है वो प्रॉपर्ली नहीं हो रही, ठीक है, प्रॉपर्ली नहीं है, या कि मतलब जो फॉल्टली बीपी लिया मेजर किया जा रहा है, या एम्बुलेटरी बीपी मॉनिटरिंग जो है वो नहीं प्रॉपर्ली हो रही है, ठीक है, तो ये सब है। या फिर क्या पेशेंट जो है मेडिकेशन जो हमने उसको प्रिस्क्राइब की है वो प्रॉपर्ली नहीं ले रहा है, ठीक है, प्रॉपर्ली नहीं ले रहा है, नॉट प्रॉपर्ली नॉट टेकन। या फिर आपके बाद में ओवर द काउंटर ड्रग्स क्या होती हैं, एक्चुअली ओवर द काउंटर ड्रग्स हो गई ऐसी ड्रग्स जो बीपी को रेज कर रही हैं। तो कौन सी ड्रग्स है जो बीपी को रेज कर रही है, जैसे कि कोई अगर नेजल स्प्रे ले रहा है, नेजल स्प्रे, ठीक है, या फिर कोई आई स्प्रे ले रहा है, आई ड्रॉप्स ले रहा है जिसमें कि बेजो एक्टिव ड्रग्स है, तो वो हो गया, ठीक है, नेजल डिकंजेस्टेंट हो गया। तो इसके अलावा कोकेन ले रहा है, ठीक है, कोकेन हो गया, या फिर आपका जो है
इवन जैसे दैट एल्कोहल ले रहा है, ठीक है, मान लो एल्कोहल ले रहा है पेशेंट, ठीक है, एल्कोहल में भी मोर देन 3 and 4 ड्रिंक्स ले रहा है पर डे, तो इन सब केस से क्या होगा कि ये ओवर द काउंटर टेस्ट, तो वहां पर जो है आपको जो है वो टारगेट नहीं मिलेगा, तो ये सब चीजें भी स्टॉप करनी है। इसके बाद में अगर ये सब चीजें नहीं, तो आप क्या देखेंगे कि सॉल्ट इंटेक देखेंगे, ठीक है, सॉल्ट इंटेक, तो सॉल्ट इंटेक अगर उसका बढ़ा हुआ है, ठीक है, वो सॉल्ट ज्यादा ले रहा है, तो उसमें भी जो है हम जो मेडिसिन से कवर नहीं कर सकते, यानी नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजर में देखना पड़ेगा। तो सॉल्ट इंटेक को चेक करने के लिए हम 24 आवर, एक्चुअली क्या होता है, सॉल्ट इंटेक जो है 2 से 3 ग्राम पर डे जो है वो सॉल्ट प्रिस्क्राइब होता है उसमें, ठीक है, सीकेडी में। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 24 आवर यूरिन सोडियम जो है लेवल चेक करेंगे, ठीक है, और अगर इसके साथ सोडा बाइकार्ब की टैबलेट ले रहा है तो 24 आवर यूरिन में सोडियम प्लस क्लोराइड लेवल चेक करेंगे, ठीक है, ये 24 आवर यूरिन सोडियम लेवल, सोडियम प्लस क्लोराइड लेवल, इसका सोडा क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड लेवल चेक करेंगे, ठीक है। अगर ये सब कुछ सही है, तो फिर क्या करेंगे हम, इसके बाद ये कि अगर ये सब कुछ सही है तो हम सेकेंडरी कॉज ऑफ हाइपरटेंशन को रूल आउट करेंगे। सेकेंडरी कॉज ऑफ हाइपरटेंशन हो सकता है, तो सेकेंडरी कॉज ऑफ हाइपरटेंशन क्या है, तो सेकेंडरी कॉज ऑफ हाइपरटेंशन जो है उसके लिए क्या क्या कॉजेज हो सकती है वो देख लेंगे। तो सेकेंडरी कॉजेज ऑफ हाइपरटेंशन तो क्या हो सकता है, तो एक्चुअली रीनल आर्टरी स्टेनोसिस हो सकती है, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, ठीक है, और इसके साथ में प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म हो सकती है, एल्डोस्टेरोन का लेवल बढ़ा हुआ, प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, इवन आपके ये तो रीनल डॉपलर करा लो आप, रीनल आर्टरी का डॉपलर तो पता पड़ जाएगा आर्टरी स्टेनोसिस। इवन इसके लिए आप प्लाज्मा रेनिन कराओगे, प्लाज्मा रेनिन एंड एल्डोस्टेरोन लेवल करा लो, एल्डोस्टेरोन लेवल, एक्चुअली डीआरए चल रहा है, डायरेक्ट रेनिन इन्वर्टर, तो ये लेवल बढ़ा हुआ, तो ये लेवल जो कम लेगा, तो इसलिए आपको एक्चुअली क्या करना है, तो वो नहीं चलना चाहिए एलिस करें, तो आप रेनिन कराओ और एल्डोस्टेरोन लेवल कराओ। अगर ये बढ़ा हुआ तो ये कहां जाएगा आपका हाइपर एल्डोस्टेरोन की तरफ जाएगा। रीनल आर्टरी के लिए आप क्या करा सकते हो, डुप्लेक्स स्कैन करा सकते हो, डॉपलर करा सकते हो रीनल आर्टरी का। इवन समटाइम्स कोआक्टेशन ऑफ आउटा हो सकता है, कोआक्टेशन ऑफ आउटा, ठीक है, तो वहां पे भी ये भी सेकेंडरी कॉज है, ठीक है, मतलब हाइपरटेंशन का अगर मान लो प्राइमरी नहीं है तो फिर सेकेंडरी यानी किडनी के अलावा मतलब कोई कॉज है तो वो ये आपका सेकेंडरी कॉज। इसके अलावा जो है जैसे कि क्रायोग्लोबिनीमिया हो गया, ठीक है, NC3 नेफ्रोपैथी हो गई, थ्रोम्बोटिक माइक्रोएंजियोपैथी हो गई, ठीक है, ये सब चीजें भी हैं जिसमें कि जिससे जो सेकेंडरी कॉज होती हैं। एक्चुअली फिर उसके बाद में क्या, अगर हमने रूल आउट कर लिया ये सब नहीं है, यानी कि सेकेंडरी कॉज ऑफ हाइपरटेंशन प्रेजेंट नहीं है, तो अब क्या करेंगे हम, अब हम जो है इसको हमने रूल आउट कर लिया, रूल आउट करने के बाद ये चीजें नहीं है सेकेंडरी कॉज ऑफ हाइपरटेंशन, तो फिर हम आगे जाएंगे। तो बीटा ब्लॉकर, जनरली बीटा ब्लॉकर्स आर नॉट प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है, बीटा ब्लॉकर आर नॉट प्रिस्क्राइब्ड इन सीकेडी पेशेंट, बट इफ पेशेंट सीकेडी का है और उसको इस्कीमिक हार्ट डिजीज है, यानी कोई कार्डियोवैस्कुलर डिजीज अगर है और बीटा ब्लॉकर चल रहा है तो उसको कंटिन्यू करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, तो वहां पर हम बीटा ब्लॉकर दे सकते हैं, ठीक है। अगर इस्कीमिक हार्ट डिजीज है और कार्डियोवैस्कुलर तो वहां पे दे सकते हैं, ठीक है, इस इंडिविजुअलाइज। अगर जो है इसके बाद में भी जो बीपी टारगेट है वो हमारा मैट नहीं किया, बीपी टारगेट नहीं मिला जो हमने बीपी टारगेट बनाया है, तो हम क्या करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि यूरिन में जो प्रोटीन आ रही है ना वो नेफ्रोटिक रेंज की है कि नहीं है। तो अगर नेफ्रोटिक रेंज की प्रोटीन यूरिया अगर हो रही है, दैट इज मोर देन 3 ग्राम के आसपास पर डे जो है 24 आवर में जो है प्रोटीन लॉस हो रहा है यूरिन से, तो वहां पर हम क्या करेंगे कि जो है जैसे अगर नेफ्रोटिक रेंज का प्रोटीन यूरिया अगर जैसे मान के चलो नहीं है और है, ठीक है, अगर नहीं है नेफ्रोटिक रेंज का प्रोटीन यूरिया तो वहां पर हम क्या करेंगे, ठीक है, तो वहां पर हम जो है नॉन DHP प्लस DHP को कंबाइन कर देंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि इससे एडिमा के चांस इंक्रीज होंगे, तो इसके लिए हम पहले से सॉल्ट रेस्ट्रिक्शन और डायरेटिक थेरेपी लेके चलेंगे साथ में, ठीक है। तो ये हो गया, और अगर मान लो नेफ्रोटिक रेंज का प्रोटीन यूरिया प्रेजेंट है, ठीक है, तो यहां पर हम ACEI और ARB इन दोनों को मिक्स कर देंगे अब, ठीक है, दोनों को मिक्स कर दिया ACEI ARB इसको, ठीक है। लेकिन इससे क्या होगा, कार्डियोवैस्कुलर रिस्क बढ़ जाएगा, ठीक है, तो ये थोड़ा सा तो लो कार्डियोवैस्कुलर रिस्क है तो वहीं पे इसको स्टार्ट करेंगे, नहीं तो जनरली स्टार्टिंग करेंगे, ठीक है। तो लो कार्डियोवैस्कुलर रिस्क है तो इसको हम कॉम्बिनेशन में स्टार्ट कर सकते हैं हाई प्रोटीन यूरिया में, और अगर प्रोटीन यूरिया लो नेफ्रोटिक रेंज का जो प्रोटीन यूरिया वो नहीं है तो नॉन DHP CCB को हम स्टार्ट करेंगे। अगर इसके बाद में भी बीपी नहीं मिला, इसके बाद में भी बीपी टारगेट हमें मैट नहीं किया, तो फिर हम क्या करेंगे, तो फिर हम आगे जो जाएंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम कुछ अनदर ड्रग्स हैं क्लिनिकल ट्रायल पे अप्रूव नहीं हुए बट उनको स्टार्ट कर सकते हैं। कौन सी ड्रग्स हैं, जैसे कि आपका क्लोनिडिन है, ठीक है,
क्लोनिडिन स्टार्ट कर सकते हैं, इसके साथ में क्या है डॉक्साजोसिन स्टार्ट कर सकते हैं, इसके साथ में हाइड्रोलाजीन स्टार्ट कर सकते हैं। एक्चुअली अगर जो है वो टारगेट नहीं मिल रहा है सबसे, तो हम ये अदर ड्रग्स भी हैं जो कि हम स्टार्ट कर सकते हैं। मिनॉक्सिडिल है, मिनॉक्सिडिल स्टार्ट, कई ड्रग्स हैं जो कि फिर, लेकिन ये क्लिनिकली अप्रूव नहीं है ट्रायल में, ठीक है, तो ये सब स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये सब एक्चुअली हाइपरटेंशन इन सीकेडी जो है उसमें ये किस तरह का सिनेरियो है, वो सब सिनेरियो बेसिकली जो है वो हमने आज डिस्कस किया, और दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वेरी वेरी कह सकते हैं इंटरेस्टिंग टॉपिक आल्सो। तो हम समराइज कर लेते हैं। समराइज में ये है कि एक्चुअली हम स्टार्ट करेंगे एसीआई एआरबी से, ठीक है, एसीआई एआरबी से स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले देखेंगे यूरिन प्रोटीन कम होना चाहिए, प्रोटीन ज्यादा, एक्चुअली प्रोटीन ज्यादा है तो उसका इफेक्ट भी ज्यादा होगा एसीआई एआरबी से। तो एसीआई या एआरबी से स्टार्ट किया, नहीं बीपी मैट किया, तो हमने उसकी डोज को डबल कर दिया या फिर उसकी मैक्सिमम डोज तक गए। उससे भी अगर बीपी टारगेट नहीं मिला, 2 से 4 वीक्स पे हम जो है देखेंगे। अगर बीपी टारगेट नहीं मिला है तो फिर हम क्या करेंगे, नॉन डीएचपी या डीएचपी देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम प्रोटीन यूरिया देखेंगे। प्रोटीन यूरिया अगर नहीं है, एनिलाइज प्रोटीन यूरिया है, तो हम वहां पे क्या करेंगे, वहां पे एम्लोडोपिन यानी नॉन डीएचपी स्टार्ट करेंगे। प्रोटीन यूरिया अगर ज्यादा है तो वहां पर हम क्या करेंगे, डीएचपी वाला यानी कि डिल्टियाज़ोन स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और उसको कॉम्बिनेशन में ले लेंगे एसीआई एआरबी और प्लस डिल्टियाज़ोन जो भी है, इनमें से कोई कॉम्बिनेशन। एक्चुअली इसके बाद में भी बीपी टारगेट नहीं मिला तो हम डायरेटिक प्रेस्क्राइब करेंगे। डायरेटिक में हम ये देखेंगे क्रिएटिनिन जो है वो 2.5 से कम है तो सीरम तो क्लोरोथैलेडोन, और 2.5 से ज्यादा है तो फिर हम जो है फ्यूरिज्माइड स्टार्ट करेंगे। उसके बाद में एल्डेक्टोन बी की अलग कंडीशन मैंने बताई थी कि एल्डेक्टोन कब स्टार्ट करेंगे। इवन अगर हमने जो है ए दे दिया, ए से आरबी दे दिया, ठीक है, सी दे दिया, सीसीबी दे दिया, ठीक है, डी दे दिया, डायरेटिक दे दिया, उसके बाद में भी अगर बीपी नहीं मैच कर रहा है तो हम क्या करेंगे, फिर हम रीअसेस करेंगे कि या तो होम बेस्ड जो बीपी मॉनिटरिंग हो रही है ये तो गलत है, या फिर एम्बुलेटरी बीपी मॉनिटरिंग गलत है, ठीक है, ये सब कर लिया। इसके बाद में क्या है कि अगर हमारा ये सब कंडीशन यानी कि सॉल्ट इंटेक भी सही है, प्रॉपर्ली है, ड्रग्स भी अच्छे से ले रहा है, ओवर द काउंटर कोई ड्रग्स नहीं ले रहा है, ठीक है, ये सब कंडीशन में देख लिया। अगर सब कुछ सही है तो रिसर्च, तो फिर हम सेकेंडरी कॉज ऑफ हाइपरटेंशन देखेंगे। सेकेंडरी कॉज ऑफ हाइपरटेंशन देखने के लिए हम वही सब रीनल आर्टरी स्टेनोसिस है, या फिर एथेरोस्क्लेरोसिस एम्बोलिज्म, रीनल आर्टरी एथेरोस्क्लेरोसिस एम्बोलिज्म है, या फिर आपका जो है कोक्टेशन ऑफ आयोर्टा है, ठीक है, या फिर आपका प्राइमरी हाइपरटेंशन, ये सब देखेंगे। अगर ये नहीं है तो बीटा ब्लॉकर स्टार्ट कर सकते हैं। बीटा ब्लॉकर को लो डोज में स्टार्ट करो, और ये कब स्टार्ट करना है, जब इस्केमिक हार्ट डिजीज हो। अगर इस्केमिक हार्ट डिजीज नहीं है तो जस्ट बाईपास, और आप चेक करेंगे यूरिनल प्रोटीन। यूरिनल प्रोटीन अगर नेफ्रोटिक रेंज की प्रोटीन यूरिया है तो आप क्या करेंगे कि नेफ्रोटिक प्रोटीन प्रेजेंट है तो वहां पे आप क्या करेंगे, एसीआई एआरबी को कॉम्बिनेशन में ले लेंगे। नेफ्रोटिक रेंज के प्रोटीन यूरिया नहीं है तो डीएचपी नॉन डीएचपी को जो है वो हम कॉम्बिनेशन में ले लेंगे। अगर इससे अगर काम चलता है तो बेस्ट है, और अगर इससे भी नहीं होता है तो उसके बाद में हम आगे जाकर के मिनॉक्सिडिल, गुआफेनासिन, या फिर डॉक्साजोसिन, या फिर आपका क्लोनिडिन, या जो भी ये जो न्यू ड्रग्स हैं हाइड्रोलाजीन, ये सब स्टार्ट करके देखेंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द एल्गोरिथम हाउ वी ट्रीट द हाइपरटेंशन इन द सीकेडी पेशेंट, एंड यू जस्ट लर्न एंड टीच, और you just write the notes or make the notes for patient for controlling the hypertension in the CKD patient. So just thank you, and thank you for seeing this, and thank you for subscribing, and thank you.